In August 1947, after the British rule, India was divided into two independent nations, Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. This started the greatest migration in history. My Dadu, born and brought up in Pakistan, came back to his village Mera Sharif during his summer vacation. Having no idea how his life was going to change drastically in the next few days, he learned about the riots and the whispers about a partition going around. Coming from a wealthy family in Pakistan and having to leave everything with the hope of coming back one day, only never to be fulfilled. His father was a wealthy owner of a shop and one of the most respected families in the village. Once the rumors of a partition turned into full blown riots, the trusted Muslim Guruji told them they were safe but couldn't guarantee for how long, as he was also answerable to the outsiders. They had two options: to stay and change their religion or to leave. They knew staying was not a good option. They wouldn't change who they were. It was their identity after all. His father decided to go and look for places to stay and would come back to take their family. My Dadu decided to accompany him. If only he knew that was the last time he'd ever be in his village, in his home. The rest of the family was sent with the Guruji's men till Tashil. They left most of their gold and jewelry with their Guruji back home, but were still robbed in Tashil. They lived in army camps and were waiting to be met with Dadu and his father. To live in uncertainty of whether your family is even alive or not, I could never imagine. No matter how many times I've heard this story, I could never feel what he must have felt, even in the retelling of this story. सुल्तानपुर लोधी में जब महीना डेढ़ महीना गुजर गया तो फादर भी परेशान थे, फैमिली का पता नहीं, जिंदा है उठा के ले गए हैं या वहीं रह गए हैं। कभी कभी गुरुद्वारे में जाके खाने तक की नौबत आ गई, लेकिन किसी से पैसा धैला नहीं मांगा, ना हमने कुछ हाथ जोड़े किसी से। तो क्या हुआ कि अगस्त के महीने में लास्ट में वहाँ फ्लड आ गया। फ्लड आ गया, चारों तरफ पानी 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 पानी। तो लाइनें भी जो रेल की लाइन थी वो भी टूट फूट गई। जो आप देखने गए तो वो जितने वो ट्रैक जो था वो ऐसे लटक रहा था। चलो ठीक है। तो फादर कहने लगे चल मेरे साथ, वहाँ कोई काम है, मजदूरी वजदूरी करके रोटी तो खानी है। मैं 12 साल का था तो वहाँ उससे बात की, तो कहने लगा आप साहब जी लग जाओ, आपको 1.5 रुपया मिलेगा। 1.5 रुपये की कीमत होती थी, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं भी करूँगा। तो तू क्या करेगा? तो उसने कहा करने दो ना, इसको 75 पैसे मिलेंगे, 1.5 रुपये। Dadu and his father every day waited at the Sultanpur Lodi train station without fail to see familiar faces, to hear familiar names, but only in agony. After months, they finally met the rest of their family and were so happy to see their familiar faces. Just were so happy to learn that they were alive. Once that happened, they had nothing left to do in Sultanpur Lodi and decided to leave for Ghaziabad. My Dado's mama used to live there. He told them that he had to go to Delhi to meet with his son and would be living with him so they could have the house to themselves. The only problem was getting him to school. Now, my Dadu left there from sixth grade and it had been almost a year, and he had no idea how he'd get into school. He always taught us to educate ourselves because he valued that more than मेरे बड़े भाई साहब तो रावलपिंडी में थे, बाई एयर आए बाद में वो, जब पाकिस्तान बन चुका था। उनके पास उन्होंने हेल्प की, आए बाई एयर उनके पास। उन्होंने हेल्प की, पैसे दिए फादर को। उन्होंने सब्जी की दुकान खोल ली मंडी में, सब्जी मंडी में, गाजियाबाद में। छठी भी छोड़ के आया था वहाँ 6 क्लास में। अब क्या करूँ, दाखिले मिलते नहीं है, और रिफ्यूजियों को कोई पूछता नहीं, ये शरणार्थी है, ये रिफ्यूजी है, ये बाहर से है। चलो ठीक है। एक बार एक जिसको मैं कभी अब भी याद करता हूँ, उससे बात हुई, तो वो कहने लगा मैं आपको दाखिला दिलवा सकता हूँ। कहता आपका टेस्ट होगा श्री सनातन धर्म हाई स्कूल में, वो टेस्ट में अगर पास होते तो मैं आपको आर्ट्स में एट्थ में दाखिला दिलवा सकता हूँ। मैंने कहा भी कैसे टेस्ट होगा? ये अगले साल 2 महीने की छुट्टियाँ थी, अगस्त सितंबर का या जुलाई का महीना होगा।
तो मैंने उन्होंने कहा हिंदी में, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा हिंदी मेरे को नहीं आती। हाँ, उर्दू मेरी बेस्ट लैंग्वेज थी, उर्दू इधर देखी नहीं गई, हिंदी ज़्यादा थी। तो मैंने एक वो छोटा सा सब का खा गा का कहना लिया। तो मैं 2 महीने में, क्योंकि मेरे को पंजाबी आती थी और पंजाबी में मैं लिखा पढ़ी भी करता था, तो उससे पंजाबी में मिलता जुलता था। तो उस लिहाज से मेरे को कुछ अच्छा रिस्पांस मिला हिंदी का। तो मेरे को 10 नंबर से 6 नंबर मैथमेटिक्स में, 5 नंबर मिले मेरे इंग्लिश में और 3 के 3.5 मिले मुझे हिंदी में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पिकअप कर लेना हिंदी में। तो मेरे को दाखिला मिल गया श्री सनातन धर्म हाई स्कूल में, जिसका प्रिंसिपल था B.K. गर्ग, वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। तो मैं फादर को हल करवा, 12-1 बजे मेरे को छुट्टी हो जाती थी। उनको सोने की आदत थी, फादर को घर भेज देता, घर साथ में ही था गाजियाबाद। भाई साहब मेरा प्रिंसिपल आ गया गर्ग साहब, तो वो खड़ा हो गया। तो मैंने देखा हो, मैं तो डर गया। मैंने कहा ये कहेगा तुम पढ़ाई करने आए हो कि इस उम्र में काम करने के लिए, सब्जी का काम करने आए हो। उनका सर कहता नाथ साहब तुम यहाँ। मेरे सर फादर को थोड़ा काम था, वो वहाँ गए, मैं यहाँ पे वेरी 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 गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्लास से वो पियर आया, वो कहता है नाथ किशोर नाम का जो लड़का है इस क्लास में 6th में प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। मैं तो घूमते खड़े हो गए, मैं तो डर गया। मैं 2 दिन पहले सब्जी लाया था, कुछ कह रहा। तो मैं उनकी गया, नमस्ते की। तो कहता नाम किशोर, मैं कहता आपको 1 साल के लिए 100 रुपया दूंगा, ग्रांट किया है किताबों के लिए। 6th ना 8th 9th और 10th ये 3 साल की आपकी जो फीस है वो माफ़ की जाती है। मैंने कहा थैंक यू, आप तुम जा सकते हो। Despite valuing education so much, he had to leave after the 10th grade. He had to move to Panipat and leave his education midway. Couldn't continue after that. He got some forms from the railways, filled them out, and succeeded in getting a job there. और अब पानीपत गए। पानीपत में मैंने कुछ फॉर्म भरे थे, कुछ अपने टेस्ट दिए थे, कुछ रिटन टेस्ट हुए, कुछ रेलवे में थे। तो मैं उसमें सक्सीड हो गया, तो मुझको चुन लिया गया। मैं ट्रेनिंग के लिए रेलवे में भर्ती हुआ। उसके बाद मेरी पोस्ट कई जगह हुई है, लखनऊ भी हुई, कानपुर में भी हुई। उसके बाद मैं सेटल हो गया दिल्ली शादी के बाद। और वहाँ मैं मोस्टली टाइम नॉर्थ ईस्टर्न से नॉर्दर्न साइड में आ गया। तो मैं वहाँ फिर मकान भी बना लिया, सर्दिया कलर में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वहाँ गाड़ी चल पड़ी, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। करते करते अब शायद हमने इधर का लिखा था बेंगलोर में, जैसे तैसे हम यहाँ आए। Such experiences in life always humble you down. And not just you, the people around you as well. They remind you to stay on your lane, to keep your feet firm on the ground, and to not get carried away with your privilege. My grandfather's story was always my motivation to do better, to be better. That people from all walks of life can do wonders irrespective of where they come from. That falling down isn't a reason to stop. Time will never wait for anyone, and this one lesson taught by him will be guiding me for the rest of my life.